Sorry. Hello. Yeah. A very warm good evening to all of you. I think a power-packed, full, knowledgeable masterclass on GST today. A big congratulations and big round of applause for the WRC team on this Sunday morning under the leadership of Chairman C.A. Saurabh Ajmera sir, Secretary Bishan Shah sir, Vice Chairman Rikin Patel ji, and absentia Treasurer Rakesh Shah ji and Vikasa Chairman Rajesh Agarwal ji from Pune. I think driving this legacy of 75 years demands such kind of dedication that on Sunday also the such type of masterclass on GST is arranged, and we are into the last session and we have our speaker with us, Sonia ma'am. Welcome to WRC ma'am and welcome to this, and requesting please come to the dais. 2 lines for all the leaders of the study circle and the WRC who are running this study circle and jointly with WRC today they have the program. नेतृत्व समर्पण से जन्म लेता है पर ज्ञान उसे दिशा दिखाता है, ज्ञान उसे दिशा दिखाता है, और उसी ज्ञान के लिए आज हमारे बीच में पूरा धुरंधर सारे स्पीकर्स हमारे साथ थे, बीट अविनाश सर, सुनील गावाला जी, मैम. थैंक यू वेरी मच ऑल द स्पीकर्स फॉर बीइंग हियर. नाउ आई रिक्वेस्ट माय कलीग मानसी मैम टू प्लीज इंट्रोड्यूस आवर टुडेज स्पीकर. Good evening, everyone. CA Sonia Arora ma'am is a distinguished chartered accountant and a cost management accountant with over 18 years of experience in accounts, finance, and indirect taxation. As a founder of Sonia K & Associates, she specializes in GST compliance, corporate invoicing, tax audits, and litigation strategy, advising large corporates and listed entities. A former chairperson of the Jalandhar branch of North Indian Regional Council of ICAI, she is widely recognized as a trusted GST faculty and thought leader, delivering sessions across leading institutions and ICAI forums. With this, I invite Sonia ma'am to continue with the session. I would like Sahil to present the memento to Sonia ma'am. I request all WRC team, Chairman Saurabh sir, Secretary Bishan sir, to please come on the dais to present a memento to our today's speaker. Over to you, ma'am. Good evening all. Good evening all. I know session morning से चल रहा है, आपकी एनर्जी ऐसे है, but मैं भी 3 o'clock से start हुई हूँ and have been diverted to the flight diverted to Ahmedabad and then have to reach there. तो but लग रहा था destiny seriously good one है because the gathering is seriously sitting over there with the hall full. So first of all, a huge round of applause for all of you because from the morning you are here to learn, and that too on a Sunday and in the bad weather too. And now before starting, my sincere thanks and gratitude to the WIRC along with the Borivali branch for giving me this opportunity to interact with such an enthusiastic audience. And regarding the chairman, I think everybody know the most vibrant, energetic person is there, so I can't say no to him. Along with when the both two engines, I think they are coming up with the same phase, secretary and the chairman, both they are doing a work in such a way. You are working in the WRC, but the beat is already sounding at the NIRC too, and that can be seen with the audience too. And now, first of all, doing about the session of today. किस किस को ये डाउट है ये सेशन है किसका? जैसे आज मुझे डाउट हो रहा था मैं मुंबई पहुंचूंगी कि अहमदाबाद ही रह जाऊंगी, तो किसको लग रहा है कि इनकम टैक्स का है कि मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का है? जस्ट रेज योर हैंड्स. क्या लग रहा है? Is this session for a tax audit or for a GST audit?
Okay, great. Chalo, you answer well. Okay, and another question. किनको ये लगता है कि जब हम टैक्स ऑडिट करते हैं वी डोंट नीड यू नो जीएसटी पासवर्ड्स एंड seeing the GST reconciliation. I'm not here today to do the reconciliation. Let me clear everything. ये मत सोचना मैं आज आपको reconciliation ऐसे सिखा जाऊंगी कि reconciliation का issue ही नहीं होगा. Reconciliation हमेशा ही होंगी. यहाँ पे हम देख रहे हैं we will be finding out the reason for the reconciliation. I'm not here to mitigate the reconciliations. But why, whether these reconciliation are valid or not, we will be digging out the reasons for that. And the second is ki if you are not looking at the GST password, their ledgers, their reconciliation at the time of doing the tax audit, believe me, the morning session then will be a very, 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 useful for you, because then there will be a litigation, appeals, everything. You have to give the reply to the notices. And if you want all these, you are saying ki that's a tedious task, and we want to give a quality work to our client. That is another opportunity coming up to your line at the time of tax audit. Okay, is there any specific clause in the tax audit pertaining to GST? है कोई? अच्छा, clause 44. इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना? How many say only clause 44 is there for GST? Chalo, great, दो, okay. Now, what more? Depreciation, 3 आगे clauses, great. Four clauses, 5. In the tax audit report, total we have 44 clauses. Out of it, how many pertain to indirect tax? Means, while doing tax audit, when we are saying ki we do only practice in the direct tax area. Now these words are going to be a very much problematic in the future. Reason being, then nobody is going to get the audit done from us. I'm not saying ki I will be doing the indirect too. My team will be doing. The another person maybe they're doing. But there are certain information that they have to provide me at the time when I am filing their tax audit report. And the same thing happens if you are having another GST consultant in your company. At the time of finalization of a books of account, I will provide you a questionnaire that he need to provide to you if you are not into the GST practice of that particular concern. But the basic thing, the major basic one, जैसे कहते हैं ना एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए ना, टैक्स लगता है कि नहीं लगता है, ठीक है, बाकी तो कंप्यूटर ही आजकल कर देता है, हमें याद नहीं है कि क्या स्लैब्स कैसे क्या है, बट लगता है कि नहीं लगता, ये चीज़ें बेसिक हैं. तो आज जस्ट मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी. इवन दो यू आर फाइलिंग अ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, दीज क्लोजेस दे आर द बेसिक वन. अगर आप इसमें नहीं कर रहे हो तो लेटर ऑन दीज स्मॉल स्मॉल इश्यूज विल गोइंग टू बी अ बिगर वन. और वो कैसे होते हैं बिगर वन, ये आज हम डिसाइड करेंगे, आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगी. डन? होप नॉट टायर्ड? हो गए भी तो मैंने कौन सा मान जाना है, बट आई विल डेफिनेटली टेक 40 मिनट्स ओनली. बी विद मी जस्ट फॉर दैट 40 मिनट्स, सब कुछ समझ आएगा. ठीक है? नाउ अगर मैं बात करूं कि क्लोजेस कौन कौन से हैं, ठीक है, तो पहली बात तो सबसे पहले जैसे मैंने ऑलरेडी कन्वे कर चुकी हूँ, टैक्स ऑडिट इज नो लॉन्गर एन इनकम टैक्स एक्सरसाइज ओनली. तो जो हमें ये एक मिथ है कि जब हम टैक्स ऑडिट कर रहे हैं इट्स इन द सितंबर एंड टैक्स जीएसटी ऑडिट इज इन दिसंबर, इफ इट्स अ जीएसटी रिकंसिलेशन, प्लीज कीप दैट फाइल असाइड, वी विल सी इट, लुक इनटू इट इन द मंथ ऑफ दिसंबर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग जीएसटीआर 9. देन यू आर मिस्टेकन. उस टाइम पे कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स ओनली पर्टेन टू अ पोस्टमार्टम. बस यही कह सकते गलती हो गई. बट इफ यू रियली वांट टू रेक्टिफाई द एरर, द राइट टाइम इज व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड दैट इज व्हेन वी आर डूइंग द टैक्स ऑडिट इटसेल्फ. एंड बिलीव इट, अगर इस टाइम पे रिको करके रख ली
कोई भी नोटिस आएगा, क्या होता है जब कभी हमें नोटिस आता है, जैसे ही कई बार आजकल तो मे बी ऑन दैट साइड है तो इधर भी होता होगा, देयर हैव बीन अ फ्लक्चुएशंस इन द टर्नओवर, जीएसटी लायबिलिटी पेड, तो वी गेट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिसर ऑल्सो समटाइम कि इस बारी आपका टैक्स फाइलिंग कम क्यों है, एंड व्हेन वी आंसर on the same time or within, sir, let me check, and within 10 to 15 minutes we revert back, this is the reason, तो उनके मन में सस्पिशंस कम हो जाता है, यू डोंट गेट एनी अनदर कॉल, यू डोंट गेट अ फर्दर नोटिस. अगर आपको कोई कुछ पूछे वाई देयर इज अ डिफरेंस, और अगर कोई बोले कि डिफरेंस नहीं होता, समझ लो सबसे ज़्यादा बड़ी गलती ही वहीं पे है. बुक्स GST are 9, they are bound to be a difference, and there are X, Y, Z number of reasons जो हम करेंगे. ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब कुछ टैली हो. अब जब हम बात कर रहे हैं, gone are the days when 3B and 1 आते हैं अब नोटिस. इट्स ओनली इन 17, 18, 18, 19 क्या होता था कि आपकी GSTR 1 और 3B में मिसमैच है आइडेंटिफाइड, अब तो पॉसिबिलिटी नहीं है. देन व्हाट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, 2B के ITC के 2A के साथ, वो भी अभी क्या कर रहे हैं, इन द मंथ ऑफ जुलाई दे आर गोइंग टू फ्रीज योर ITC 2, वो भी खत्म हो जाने हैं. तो फिर नोटिस का लेवल क्या होगा. सर अभी वो मतलब कह लो कि जुलाई में हो जाएगा, बट सर्कुलर दे हैवंट गिवन, नोटिफिकेशन दे हैवंट गिवन, बट कोई भी चीज़ जब ये इम्प्लीमेंट एज अ फेज करते हैं ना, कि टेस्टिंग जो आजकल अभी लेटेस्ट फर्स्ट को ही 2 FAQs निकले हैं पर्टेनिंग टू, जैसे फर्स्ट को अभी यही आई है 2 लेटेस्ट चीज़ें, FAQ पर्टेनिंग टू द बिल टू शिप टू मॉडल, एंड सेकेंड पर्टेनिंग टू अ वॉलंटियर क्लोजर ऑफ अ E-way. तो जस्ट सी द विजन ऑफ द डिपार्टमेंट और द गवर्नमेंट. नाउ दे नो कि रिकंसिलेशन में से इतना कुछ नहीं निकलना. वट दे विल सी, डाटा एनालिस्ट, डाटा गैदर करो, देखो इनका कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है. अब डाटा में सबसे पहला डाटा क्या आता है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. जब भी कभी किसी कंसर्न का ऑडिट होता है, बैलेंस शीट के साथ व्हाट दे कॉल फॉर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट. और जब हमें लगता है ना कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, देन वी आर रॉन्ग, नॉट द डिपार्टमेंट. टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज acrossing all the tables means income tax, department of GST, bankers, and the government persons, whenever any person is doing applying any tender also. तो हर जगह वो जाता है, तो हर कोई उसको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को अपने एंगल से स्टडी करते हैं. तो वी हैव टू बी अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि कैसे करना है. सो आपको अभी मैंने बोला कि GST ऑफिसर एक्चुअली कहाँ से स्टार्ट होता है, दे विल आस्क फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 3CD लेके आओ. अभी आई थिंक वहाँ पे तो हमारे बहुत ज़्यादा चल रहा है 26 years के साथ मैचिंग. GST डिपार्टमेंट ऑलरेडी डन दैट, यहाँ आपको भी आ रहे होंगे. इवन फॉर डॉक्टर्स क्या किया, सबके 26 years लिए, दे कलेक्टेड एंड दे सेड कि जो आपको कमीशंस आ रही हैं इन पे GST था, आपकी एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड नहीं है, सो यू हैव टू गेट योर रजिस्ट्रेशन डन. So 26 years, which deemed to be exactly the document of an income tax department, who is using it? GST department. Now, what about that tax audit report then? Now, 3CD is not the end of a compliance. Okay? It is the beginning of a investigation. Before I show that slide, basically I have asked you and you have all said कि हम सबको यही लगता था टैक्स ऑडिट में GST मीन्स क्लोज 44, दैट्स इट. देयर आर टोटल 11 क्लोजेस इन द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दैट पर्टेन टू GST. सर टेंशन मत लो, आपको PPT दे दूंगी, आप सुनो, मत लो टेंशन पिक लेने की. सिर्फ 40 मिनट्स का सुनना, सब कुछ मिलेगा. अगर इसमें कुछ नहीं होगा, सौरभ सर का नंबर है, सौरभ सर का के पास मेरा नंबर है, तंग कर देना कि ये चीज़ चाहिए डिटेल में, वो चाहिए, मेरा नंबर ले लेना, सब बताएंगे. सबसे पहला छोटा सा पॉइंट, क्लोज 4 बहुत छोटा सा है. क्या होता है, आपके पास GST, आपकी पार्टी इनडायरेक्ट टैक्स में रजिस्टर्ड है तो उसका GST नंबर लिख दो.
वी आर नॉट बॉदर, वी आर नॉट कंसर्न, हम जो आता है लिख देते हैं, कभी कभी कहते हैं लिख दिया। कभी अब इतना ईज हो चुकी है कॉपी पेस्ट करके, देखो किसने करना है, आर्टिकल ने, स्टाफ ने, व्हाट दे डू, लास्ट ईयर की रिपोर्ट को कॉपी करो बेटा, फाइनेंशियल ईयर के डाटा को अब इन कर दो, दैट इज चेंज इट, ऑडिट रिपोर्ट रेडी। इस साल में उसकी कोई ब्रांच बंद हो गई, इस साल में उसने कोई ब्रांचेस ओपन कर ली, इस बार उसका कोई नंबर कैंसिल हुआ है, ये सारी चीज़ें यू मिस्ड इट। और लेटर ऑन कभी लिटिगेशन में फंसे तो मैं उन्हें प्रूव भी नहीं कर पाऊंगी मैंने ये शो किया हुआ था कि ये मेरा नंबर एग्जिस्टिंग है। लाइक परफेक्ट एग्जांपल है मल्टीपल पैन बेस्ड ब्रांचेस। मैं मुंबई में हूँ, ठीक है, मुंबई का एड्रेस है, मैंने 7 ब्रांचेस अलग अलग जगह पे खोली हैं। अब डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट GSTN, now there is no hindrance in the same state also, sometime in the same state they are having 2 GSTN, but अभी मैं ये लेके चलती हूँ कि डिफरेंट स्टेट डिफरेंट GST नंबर्स। डन सर, हमने नहीं देखा, बॉम्बे का आया। अब टोटल सेल जिसको आपने ऑडिट किया वो तो सारी ब्रांचेस की इकट्ठी थी, इतना तो सबको पता है। इनकम टैक्स इज पैन बेस्ड, मेरी एक ब्रांच ने 1 CR की कर दी, दूसरी ब्रांच ने 10 CR की कर दी, थर्ड ब्रांच ने 5 CR की कर दी है, ठीक है, और हेड ऑफिस की 100 CR की थी। तो 100 टोटल जब आपने फाइनेंशियल्स किए तो जो छोटी छोटी ये 3 थी, 16 CR इनका था, तो टेक्निकली आपने ऑडिट तो 116 CR का किया, बट नंबर किसका डाला GST नंबर 100 CR का, तो लेटर ऑन ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, जस्ट put a PAN on the search tab in the GST portal, they will show you all the GSTN belonging to that PAN, सारे वो खुद ही बता देगा। अब क्या होगी प्रॉब्लम, हम कहते हैं खुद ही बताएगा, वो तो बताएगा आज की डेट के, ऑडिट कर रहे हैं 31 मार्च का, तो हो सकता है जब आज कर रही हूँ मैं ऑडिट में सितंबर में कुछ नंबर उन्होंने मई जून में लिए हैं, और क्योंकि जब मैंने ऐसी इंस्ट्रक्शन पास ऑन हमने ही तो की थी अपने स्टाफ को, बेटा पैन निकालो, सारे जो आए हैं ऑडिट रिपोर्ट में डाल दो। अब ये छोटा सा हमारा, उनको इंस्ट्रक्शन कितनी बड़ी हुई, एक ब्रांच कब ओपन हुई थी, जुलाई में, 31 मार्च में हमने उसका ऑडिट भी कर दिया, और हम कहेंगे ग्रॉस नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिल्कुल नहीं है। सो एट दैट टाइम व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू कॉल अ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पर्सन इटसेल्फ। 31 मार्च को पहले बताओ आपके वो नंबर कौन कौन से चल रहे थे, एंड गिव द लुक एट द ट्रायल ऑफ ऑल, की आपको सबके ट्रायल आए कि नहीं आए, देन चेक इट, क्रॉस चेक फ्रॉम द पोर्टल, एंड उसके बाद उनकी डेट भी आ जाती है वहाँ पे पोर्टल पे कि ये कब स्टार्ट हुआ था, यानी कि जब हमने स्टाफ को अपने इंस्ट्रक्शन देनी है तो साथ में क्या कहना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेंशन कर देना। तो देन वी विल बी 100 नहीं 101% श्योर कि हमें उसको लेना चाहिए। इस छोटे से कॉलम पे ये विटाल इन्फॉर्मेशन हमारी गलत ना जाए। सेकेंडली, अब मेरे केस में क्या हुआ था, एक पर्सन ने रिटर्न्स फाइल नहीं करी 6 मंथ्स, उसका नंबर कैंसल्ड हो गया, ठीक है, उसके कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही थी, देन उसने आफ्टर 6 मंथ्स रिक्वेस्ट की, रिवोक कराया, ओके हो गया। इन द मीनवाइल जो ये ऑडिट पीरियड का टाइम पीरियड था, उसने नेक्स्ट टाइम में 9 फिल करके तो कर दिया टैक्स पे। अब GST डिपार्टमेंट कहता मेरे को कैसे पता चले, तो हमने बोला आप इसके टैक्स ऑडिट रिपोर्ट निकालो, CA की सर्टिफाइड है। आर सिग्नेचर सीरियसली कैरी अ वैल्यू एंड अंडरस्टैंड इट। Tax audit report is going to be a big evidence in the whenever there is any difference of opinion between GST department and the client, it is only the tax audit report where we survive. वो कहते हैं ये तो गुड्स है, वो कहते हैं सर्विस है, मैं क्या देख लो टैक्स ऑडिट में हमने दिखा हुआ है कि हम काम किस चीज़ का करते हैं। सेम सेकेंड क्लोज जो मैं अभी बोला, हम काम किस चीज़ का करते हैं, क्या रेट लगना है क्या नहीं। और समटाइम देयर हैव बीन अ ड्रास्टिक चेंज बिटवीन आप जो कोड डाल रहे हो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में और जो GST में उसने नंबर कह के लिया था, वहाँ वो कह रहे हैं मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, इधर आप दिखाई जा रहे हो ये ट्रेडिंग में है। और समटाइम आप दिखा रहे हो वो सर्विस दे रहे हैं,
देखो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तो सर्विस में डिफरेंस है. जैसे मैं बोलूँ मैंने कंसल्टेंसी का लिया है, अब मैं इनकम टैक्स के साथ में जीएसटी की देना भी शुरू हो गई, इट हार्डली मैटर्स. इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. सर्विस रिमेन्स अ सर्विस, SAC remain the same, 18% remain the 18% rate. There have not been any difference between good and service. But if manufacturing से trading add कर दी, trading से manufacturing में convert हो गए हो, then it make a difference. और यहाँ पे भी last time पे वो तो एक ऑटो निकले थे, सॉफ्टवेयर बेस्ड ही निकले थे, आपको पता होगा नोटिस कि आयरन एंड स्टील, ये पेंट, ये HSN आपके यूज हुए हैं, यू हैव टू रिवर्स द ITC. देन वी रिवर्ट कि सर वी आर इनटू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वी बिलोंग टू इट एंड दे ऑल आर आर इनपुट्स, सो वी आर एलिजिबल टू गेट द ITC. डन. सो यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड क्लॉज टू नेचर ऑफ बिजनेस, कहाँ पे क्या हिट होता है. अब भी मैं इसमें और डीप जा सकती हूँ. ये 11 को लेट मी फर्स्टली फिनिश इट आउट एज अ ग्रॉस, की आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस ना हो. कि जब हम टैक्स ऑडिट कर रहे थे हमने ये चीज़ ज़रूर देखी हो कि आपने GST नंबर में अपना बिजनेस कौन सा दिखाया, और आप जब टैक्स ऑडिट कर रहे हो उसमें आप अपना लाइन ऑफ बिजनेस क्या दिखा रहे हो. और अगर आप बोलो उसने फिर यहाँ पे यही चीज़ आएगी, उसके बाद चेंज की है, तब 31 को नहीं निकलना. और अगर आपने टैक्स ऑडिट में लिख दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि यस इसने लाइन ऑफ बिजनेस में ऐड किया है कोई, तो ये चेक कर लो उसकी अमेंडमेंट करी थी कि नहीं करी थी. नहीं तो फटाफट GST पोर्टल पे एट द टाइम ऑफ डूइंग द टैक्स ऑडिट साइमल्टेनियसली उसे बोल दो कि आप वहाँ पे भी अमेंडमेंट फाइल कर दे. GST पोर्टल एक तरफ से बहुत अच्छी चीज़ है. रीज़न, जब हम रेक्टिफाई कर देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट जब वो आएंगे वो कराएंगे तो वो रेक्टिफिकेशन नहीं मानी जाएगी, वो फ्रॉड माना जाएगा. यू ऑल नो डिफरेंस बिटवीन 73 एंड 74. देयर इज वेरी थिन लाइन ना. और वो लाइन क्या है थिन लाइन? फ्रॉड है कि मिस रिप्रेजेंटेशन है. सिंपल ये होता है बात किसने की. मैं यहाँ से निकली रश में, फटाफट में ये बैग लेके मैं चली गई. इमीडिएटली याद आया, मैं बैक आई कि सर गलती से आपका था, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रही थी, आपका उठा लिया. और मैं और तेज़ भागी जा रही हूँ, सर पीछे है, रुको रुको मेरा बैग लेगी. अब इन दोनों में सबसे पहला इंप्रेशन क्या जाएगा? गलती कहाँ जाएगी और चोरी कहाँ जाएगी? तो once the person approach you, then they are having a different opinion about you, and when they approach us, they have a different opinion. Then we have to prove, oh sorry sir, ये हो गया था, वो हो गया था, but in the mind, somewhere in the mind, that is clicking, नहीं कुछ तो है. ऐसे कैसे गलती लगी बंदे को पता ही होना चाहिए आपका कौन सा है, हमारे कौन सा है. Now the third clause, ICDS versus GST timing difference. रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन द केस ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ये बेसिकली ज़्यादा डिफरेंस डलेगा अगर आपके पास कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट के हैं. तो यू नो देयर इज़ अ डिफरेंस एज पर GST और इनकम टैक्स ऑडिट में जब हम करते हैं तो दोनों में डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंस हमेशा रहेगा. अगर आप बोलो ना कि जिसके अभी गवर्नमेंट टेंडर कंट्रैक्टर आपके पास काम करते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्टर का, और वो बोलते हैं मेरी GSTR 7 के साथ, मेरी 26 AS के साथ, मेरी इन्वॉइसिंग के साथ और मेरी GST रिटर्न, चारों चीज़ें मिलती हैं और हमें नोटिस नहीं आता, मैं उसके हाथ जोड़ के कहूँगी मुझे भी बता दे, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा. बिलीव मी, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसका मतलब वो कुछ गलत कर रहा है. जैसे कहते हैं ना कि जिसका सब कुछ सही है समझ लो उसका कुछ सही नहीं है, क्योंकि वो काम नहीं कर रहा, वो बिल इकट्ठे कर रहा है. हम कभी कभी लिटिगेशन में बात होती है, वो कहते हैं ईवे है, बिल है, कंडा पर्ची है, ठीक है, बिल्टी है. मैं कहा सर ये तो सारे वही इकट्ठे करने लगेगा ना जो काम नहीं कर रहा. जो काम कर रहा होगा उससे तो एक दो चीज़ें ओवरलुक हो जाएंगी. ग्रेट, डन. नाउ क्लोज 14B, व्हाट अबाउट दिस? इसमें लिखा है कि हमारे इस क्लोज, हैव एनीबॉडी आस्क्ड? नथिंग. इसमें लिखा था कि जब भी कभी वैल्यूएशन करनी है ना इन्वेंट्री की, तो क्या होना चाहिए? when you value the inventory it should be inclusive of GST, but practically GST पार्ट बनता ही नहीं है कभी कॉस्ट का. हम उसका ITC लेते हैं ना, तो क्या आ गई? कॉन्ट्राडिक्शन. तो हमें इसका जहाँ जहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है क्या करना है? हमें बस डिस्क्लोजर बनाने हैं, वो देने ज़रूर है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में. ये सेम नहीं लिख देना. इसका मतलब ये होता है कि हम कह रहे हैं कि हमारी इन्वेंट्री में GST इंक्लूडेड है, क्लोजिंग स्टॉक में GST इंक्लूडेड है, जबकि ऐसे नहीं है.
और ये छोटी छोटी चीज़ें इंस्पेक्शन में जब वो स्टॉक वैल्यू करते हैं बहुत इम्पैक्ट करती हैं। 5th वन, इम्पॉर्टेंट वन, आज तक जब भी करवाने जाओ ना डेप्रिसिएशन का, बिलीव ही नहीं करते ये आपने इसका क्लेम लिया कि नहीं लिया, बिकॉज जीएसटी ऑफिसर को काउंटिंग इतनी आती नहीं होती। हम डॉक्यूमेंट क्या दिखाएं, हम लेजर दिखाएंगे, कहेंगे आप खुद ही बना के ले आए हो। फिर हमें क्या दिखाना पड़ता है, सीए से सर्टिफाई करा दे, ज़रूरत ही नहीं है। जब मैं अपना फिक्स्ड एसेट का एक्स्ट्रा लेके जाऊंगी और साथ में टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का शेड्यूल ऑफ अ डेप्रिसिएशन दिखाऊंगी, व्हेन बोथ दीज मैचेस, तो मेरे पास एक एविडेंस मैंने क्रिएट कर दिया कि मैंने इसको कैपिटलाइज्ड नहीं किया। दैट्स व्हाई आई हैव क्लेम द आईटीसी, बिकॉज 16(3) क्या कहता है, वंस यू कैपिटलाइज द जीएसटी अमाउंट देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट द आईटीसी। वेरी मच क्लियर। तो यहाँ पे हमारी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लो, ठीक है। अब रीज़न क्या होता है, अगर देखा जाए तो देखो जब हम बात करते हैं ना सारी चीज़ें सेम सेम होंगी नहीं होंगी। मोटर कार जीएसटी हम ऐड करते हैं ना, बट क्या उसका इनपुट लेते हैं, नहीं लेते, 17(5) में ब्लॉक्ड है। तो इन दैट सिनेरियो क्या हुआ, अगर कोई पूछे आपकी बुक्स में जितना जीएसटी है और आपकी इलेक्ट्रॉनिक लेजर में जितना है वो होगा, सेम होना चाहिए। तो मैंने उसको n नंबर ऑफ रीजंस बता दिए, फिर उन्होंने मेरा फटाफट केस क्लोज कर दिया। इतना भी नहीं कहा मेरे को रिकंसिलेशन दे दे। जब पहले चलता था ना 2B के साथ है, तो मैंने तब उन्हें बोला, मैं क्या सर मेरा मटेरियल अहमदाबाद से आ रहा है, डू यू थिंक पंजाब में सेम डे में पहुंच जाएगा? वो 27 को वहाँ से निकला है तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा। एंड वी डेलीबरेटली, वी आर गुड टैक्स पेयर, हम उसका आईटीसी नहीं लेते हैं, हम तब लेते हैं जब मेरी फैक्ट्री में होता है। बेसिकली सैप बेस्ड है। अब मैं सैप बेस्ड में भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप लिखते हो कि हमारा सैप बेस्ड है तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन करना है। जो स्टेट वाइज मैंने नंबर्स की बात की थी, आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में हैं, तो आपको ये पता है 35 सेक्शन इन द जीएसटी दे टोल्ड कि जहाँ पे आपकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, वहाँ आपके अकाउंट्स के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, मेंटेन होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, हम अपनी जब ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, हमने तो एक ही लिखा होता है, ब्रांचेज ऊपर डाल दी फटाफट, मैडम ने बोला था 7 डाल दिए, बट वो 7 के अलग अलग एड्रेसेस पे लिखोगे ना, हम ये वहाँ पे मेंटेन करते हैं। और अगर वहाँ पे कुछ नहीं है, टेक्निकली वही होना चाहिए, बट इफ़ यू आर सेइंग कि कंप्यूटराइज्ड है, क्लाउड बेस्ड है, तो उसका अलग से बैकअप लेके सर्वर, उसके अलग रूल्स हैं। तो कुछ भी ऑडिट रिपोर्ट में लिखने से पहले उसके लॉजिक को देख लेना कि अगर मैं ऊपर उसके 8 नंबर्स डाल रहा हूँ तो नीचे जहाँ पे मैंने लिखना है ना कि बुक्स कौन सी मेंटेन्ड है, कहाँ कहाँ है, तो वो सिर्फ हेड ऑफिस की जगह नहीं डालनी है, वहाँ पे जो 8 नंबर्स लिए हैं उनकी जो प्रिंसिपल प्लेस है उसको भी मेंशन करना है। और सर ये मैटर नहीं करता हाउ मच अनदर पर्सन इज गिविंग अस फॉर ऑडिट, वी नीड टू डिलीवर द एक्यूरेट वन। रीज़न वो हमें लेटर ऑन जाके कुछ भी कहेंगे तो किसका नाम जाएगा, जिसने साइन किए थे। तो बेटर है ना बिफोर साइनिंग हम उनसे डिमांड करें कि नाउ द वर्क इज AI based, you are going to get notices, now minimum fee is this much you have to pay because we have to recheck all these facts and figures before giving the and uploading the 3CD। जो बोलता है ना 10 मिनट लगते हैं बनाने में, 10 मिनट नहीं लगते, उसको ये बोल देना और उसको पूरा ये चेकलिस्ट दे दूंगी, डाटा दे देना, फिलअप करके ले आओ, हम वो वाली फीड कर देंगे, फिर 10 मिनट ही लगेंगे। देन ही विल रियलाइज कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। नाउ क्लोज 18 में पता चल गया क्या है मेजरली ब्रॉडली, कि इसमें वो चेक करते हैं कि आपने जो डेप्रिसिएशन शेड्यूल है उसमें चेक कर लेना कोई ऐसा तो नहीं है हेड कि आपने उधर जीएसटी भी लिया और इधर कैपिटलाइज्ड भी किया हो, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। नाउ 21 में, अब यहाँ पे ये 21 कहाँ प्रॉब्लम होता है, 21 का क्वेश्चन आता है कि कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर डेबिट है P&L में, तो वो जीएसटी वाले फटाफट देख लेते हैं। अगर आपने यहाँ पे अमाउंट डाल दी तो वो देखेंगे इसका आईटीसी रिवर्स किया था कि नहीं किया था, इससे पहले आप भी श्योर हो जाना। जैसे टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में हम कुछ डालते हैं तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटेशन में ऐड होके ऐड बैक हो जाता है ना, किसी ये ने डाला लेट पेमेंट हुई है आ जाता है ना, तो सेम उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में से अब ये वाले पॉइंट्स हैं फ्रॉम वेयर दे फेच द डाटा, ईजिली फेच द डाटा कि ये लगा दो, ये पर्सनल भी इन्होंने लिया हुआ है, डेबिट किया हुआ था, देन यू हैव टू प्रूव इट कि हमने उस पर आईटीसी
नहीं लिया हो, ठीक है, चेक कर लेना। अगर ले लिया गलती से तो क्या करो, रिवर्स कर देना। मेक अ लिस्ट ऑफ रिकंसिलेशन कि हमने 9 में DRC 3 के ट्राई किया करो। जब कोई रिवर्सल या ऐसी चीज़ करनी है ना तो वो 9 के साथ करना। रीज़न क्योंकि जब आपको ईयर के बाद पता चलता है ना तो वो 2 ईयर्स खराब कर देता है। अगर बेस्ट वे इज हम 31 मार्च को ये सारी रिको कर देते हैं सो दैट उसी साल का उसी के साथ ही क्लोज हो जाए रिकंसिलेशन। बट स्टिल ऐसी सिचुएशंस आती हैं, प्रैक्टिकली आती हैं जो आप आगे जाके कर ही नहीं सकते। रीज़न किसी ने 4-4 मंथ से फाइल ही नहीं करी थी रिटर्न, मैंने 2B के अकॉर्डिंगली करनी है, मेरा सप्लायर है, मैं अपने आप को तो करेक्ट कर सकती हूँ, अपने सप्लायर को थोड़ा ना कर सकती हूँ। वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे तो क्या होगा, मैं बुक्स में तो बिल एंटर करूँगी 31 मार्च में, बट पोर्टल पे उसका क्रेडिट नहीं लूँगी। तो नाउ what happened, there is a difference between the ITC as mentioned in the books of account audited and क्रेडिट लेजर ऑन द पोर्टल। तो क्या करूं, जो ये वाला पर्टिकुलर है ना मैं इसका एक अलग लेजर बना देती हूँ, GST रिसीवेबल। तो उससे क्या हुआ, जब अलग भी हो गया, अमाउंट भी हो गया, हमें पता है, हमारे लिए भी ईज हो गई। और रिकंसिलेशन जैसे बोला उन्होंने आपका इतना फर्क है, मैं क्या हाँ जी सर ये वाले इनवॉइस का था, ये वाले क्रेडिट नोट का था, एक पर्सन ने गलती कर दी थी, ये उसका था, ये हमें बाद में डालना था। ईच एंड एवरी रिको वी पुट इट ऑन रिकॉर्ड प्रॉपर फाइल के साथ। देन सेक्शन 43B, इसका ये क्या करते होंगे GST वाले। 43B में हम ये लिखते हैं स्पेसिफिकली कि 31 मार्च की किसी भी टैक्स की लायबिलिटी जो बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे करी कि नहीं। अगर आपने वहाँ पे कोई अमाउंट लिख दी, इसका मतलब यू आर गिविंग द इंडिकेशन। इंडिकेशन क्या, यू आर गिविंग द एविडेंस क्या इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। तो बताओ अगर टैक्स पे नहीं किया तो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट लेंगे, वो यहाँ से डाटा मिल जाएगा, इन्होंने लेट किया था, अभी तक नहीं कर रहे हैं। अब कई ऐसे होते हैं ना आपको कि GST ऐसे क्लाइंट आएंगे, GST की रिटर्न फाइल ही नहीं करी। अब आप सोचते हो कि अब हम इसका क्या करें, ऑडिट तो करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी मेंशन करोगे इसकी लायबिलिटी इतनी बनती थी, इसने पे नहीं करी, ठीक है, उसका नंबर कैंसल्ड है, इसका बाहर डिस्क्लोजर भी दोगे अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। दैट इज अ सब्सटेंशियल मैटर यू हैव गिवन। और जब मैं कैंसलेशन की बात करती हूँ, सपोज करो मेरा एक क्लाइंट था, उसकी मेजर बाइंग ना, मेजर क्या मतलब 99% बाइंग एक ही पर्सन से थी, उस पर्सन का नंबर कैंसिल कर दिया डिपार्टमेंट ने विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब जब कैंसलेशन होती है ना तो क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉन एग्जिस्ट एंड नॉन फंक्शनल। नॉन एग्जिस्ट means when they approach that person they don't find any person and place over there जहाँ से business conduct होता है, but non functional means they are having the place but due to some financial crunch or whatever be the reason, there is genuine reason उसका नंबर कैंसिल हो गया था। तो इन द केस ऑफ नॉन फंक्शनल जो है ना, कभी भी आपका डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं ITC। और जितने ये केसेस हो रहे हैं जिसको हम डिफेंड करते हैं, दे बेसिकली अराउज ऑन द केसेस ऑफ नॉन एग्जिस्ट। उससे ट्रेल आ जाती है, इनके पास ट्रेल आ जाती है। अगर मैंने बोल ही दिया मेरा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, तो सोनिया ने जिसको सेल करी थी तो कैसे आ गया, इसका तोड़ मैं अलग आपको दूंगी। मैंने उसका क्या किया था, मैंने अगर मेरे से आपने लिया, इन्होंने बोल दिया सोनिया को पकड़ा, उसके बाद आपको नोटिस डाल दिया, सर मैंने पर्सन के ना आपके सारे सप्लायर चेक करे, मेरे पास एक केस आया, उसके 90 बंदों को वो आगे सेल करता था, दे ऑल आर एक्टिव। मैंने डिपार्टमेंट को बोला अगर मैंने लिया नहीं था तो मैंने बेचा कैसे, मेरे को ये बता दो। अगर मेरा इनपुट नहीं है तो फिर मेरा आउटपुट मेरे को वापस कर दो, ठीक है। सो यू हैव टू सी ऑल द फैक्ट्स। देन सेक्शन 43B में जब कभी अमाउंट लिख रहे हो, यू हैव टू चेक कि इस पे मेरे को इंटरेस्ट पे किया था इन्होंने कि नहीं किया था। मेक अ पॉइंट, नोट इट डाउन कि हुआ है कि नहीं हुआ। नेक्स्ट आता है ITC की रिकंसिलेशन 27A। 27A में क्या लिखा है, अगर वर्डिंग देखो ना तो वो है सैनवेट क्रेडिट ITC नहीं है। अगर आप फॉर्म अपनी, आजकल सारे सॉफ्टवेयर बेस्ड काम करते हैं ना, आज जाके चेक करना, मेरा नंबर ले लेना, मुझे ज़रूर बताना, सबके सॉफ्टवेयर में देखना लिखा होगा सैनवेट क्रेडिट, सैनवेट क्रेडिट। नो वेयर दे हैव रिटन द ITC, इट इज ओनली इन द यूटिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। अगर उसको डाउनलोड करते हो ना, उसमें लिखा हुआ है
आईटीसी। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम इसका डाटा दें कि डिस्क्लेमर दे दें कि हमारे पास जो ये है बट अपलोड जो हो रहा है उस पे है, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। क्योंकि जब ये वाला डाटा देना है, सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन डाउट इसी के हैं। ये डाटा को आप ये समझते हो बुक्स में जो जो लेजर है उसका टोटल लो, ये मेरा ओपनिंग था, इतना मैंने इनपुट लिया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कभी इनपुट बुक्स और पोर्टल का सेम होता है? वो सेम हो गया सर, सीए का काम ही चला जाना है फिर तो वही रह जाना है, ऑन अ प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन फाइल योर रिटर्न, जैसे वो आता है ना, तो ये चीज़ रह जानी है। डिफरेंसेस ये कभी मिटिगेट होंगे ही नहीं। एंड यू ऑल्सो प्रे कि हो भी ना। आई एम वेरी हैप्पी इन्होंने ये जो क्लोजर ऑफ बिजनेस ईवे का निकाला है, ये जितना ये शिप टू का आपको पता है इन्होंने मैंडेट कर दिया जीएसटी नंबर डालना। नाउ सी हाउ मेनी नोटिसेस यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट। मेरे को लास्ट ऑडिट करवाए हैं, उसमें आए थे, दे टेक ऑल द ईवे रिपोर्ट, डिलीवरी के आउटपुट गए हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, एक एक ईवे के साथ हमने मैचिंग करके दी थी क्योंकि उन्होंने निकाला था, दे मैच्ड। और ये चीज़ और बताती हूँ, जब आप 9 करते हो ना, वहाँ पे होता है ना इनपुट सर्विसेज और इनपुट और कैपिटल गुड्स, 3 है ना, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स। एंड राइट नाउ देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज में सिर्फ कैपिटल गुड्स को बाइफरकेट करो, दूसरे को जैसे मर्जी कर सकते हो। बट अब क्या करते थे, हमें लगा जैसे मर्जी कर सकते थे, वो सर्विस वाले में अमाउंट ज़्यादा चलेगी। वो बेसिकली क्या थे, गुड्स का ही इनपुट था, टेक्निकली इनपुट वाले में आना था, किस में लिख दिया, इनपुट सर्विसेज में आईटीसी। तो बताओ जीएसटीआर 9 के एंगल से सर कोई गलती है? और अगर गलती है तो बहुत छोटी गलती है, मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना। अब सर देखो क्या इस गलती से कितना बड़ा पॉइंट निकाला। ये कहते आपने गुड्स तो लिए नहीं है और आपके ना ईवे में बहुत ज़्यादा ईवे बने हुए हैं, अमाउंट निकाल दी आईटीसी की। फिर हमें बताना पड़ा, अकेले अकेले बिल को देख के मैच कराया कि सर द इनपुट बिलोंग टू बेसिकली हैव बीन मेंशन इन इनपुट सर्विसेज बट इट बिलोंग टू द इनपुट। और अगर ये रिवर्स केस हो जाए तो फिर उन्होंने पता क्या कहना था, ईवे बना ही नहीं है कोई, आपकी सारी बोगस है, इतना आईटीसी है ईवे में तो दिख ही नहीं रहा। तो ये वाली चीज़ें जितने डिफरेंसेस आने हैं, अगर हम मंथली, इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी, गिव इट टू योर आर्टिकल और स्टाफ and told the for whomsoever you are doing the tax audit, not tell them sir अब से monthly checking होगी, it's not feasible for us to check all these minutely things at the year end at the time of doing the audit. To be very frank, ये अब चीज़ें आप नहीं कर सकते इतनी चेक, आपको उसे अपना वर्क दिखाना पड़ेगा, उसे मांगना पड़ेगा कि या तो इतना पे करो, अदरवाइज दैट रिस्क बिलोंग टू यू नॉट टू अस। सिंपल है। अगर कभी बिल टू शिप टू के डिफरेंसेस आ गए, ईवे के मिसमैचेस आ गए, पार्ट बी अपडेट नहीं कर रहा ट्रांसपोर्ट, नोटिस निकल गया जो पार्ट बी अपडेट हुआ था, वी नेवर फाइंड इट आउट, वो कह रहा है जलंधर से मटेरियल जा रहा है जम्मू और वो गाड़ी जब टोल टैक्स की इन्होंने डाली वो घूम रही थी तेलंगाना, वी कांट चेक इट। You are telling something impossible for us to check। जैसे हम किस चीज़ से, ये जो मैं बात कर रही थी, हमारा सप्लायर जो है अगर एग्जिस्ट नहीं करता, कैंसल्ड हो जाता है उसका नंबर, हम सारे जाने सेफगार्ड कैसे होते थे, हम क्या कहते थे, हम यही चेक कर सकते हैं 1 में बिल बोल रहा था और उसकी 3 भी फाइल थी, अब उसने 3 भी नील से कर दी, देयर इज़ नो मैकेनिज्म, देयर एन नंबर ऑफ केस लॉ इन आवर फेवर जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, कि हम तो कहीं से पता करवा भी नहीं सकते हैं कि उसने टैक्स पे किया कि नहीं किया। इन द सेम वे आई कैन ओनली चेक द ई वे। अब मैं तो कहीं से नहीं देख सकती हूँ कि ये गाड़ी कहाँ चल रही है, कहाँ नहीं चल रही है। एज अ ऑडिटर आई हैव चेक्ड and cross verified कि it's belong to more than 50,000, yes it is accompanied by e-way, yes and it is within the time period. This is the only reason the closure of a e-way they have make it mandatory कि जैसे ही आपकी जर्नी खत्म हो जाती है आपको उसको क्लोज करना है। क्लोज कब करना है, जैसे जर्नी खत्म होती है तब करना है, नहीं तो जिसकी उसका वैलिडिटी एक टाइम पीरियड होता है +1 डे। ये जर्नल बता दूं जो FAQs में आया था, ठीक है। तो अब भी ये फेज टेस्टिंग फेज है, जो भी करोगे उसका ई-वे पे कोई इफेक्ट
नहीं आने वाला। कहने का मतलब अगर आपने कोई क्लोज कर दिया ना, स्टिल वो क्लोज ऐसे नहीं होगा, अगर उसकी वैलिडिटी पड़ी भी थी तब भी होगा काम। यू कैन चेक इट आउट। नाउ ये जो 27A है, इसमें जो ITC की रिकन्सिलेशन देनी है, दैट इज ओनली अ पोर्टल बेस्ड, नथिंग टू डू विद द बुक्स। मैंने एक शीट बनाई है प्रॉपर आगे एक्सेल में कि ये मेरे बुक्स का है, उसमें से कौन कौन से रीज़न है उसको माइनस कर दें तो वो मेरा लेजर का आ जाता है। जैसे बुक्स में हम गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं, तो कई बार ये होता था ना सम टाइम कि हम बुक्स में अकाउंट फॉर कर लेते थे क्योंकि ऑर्डर आ गया, बिल आ गया मेरे पास, ठीक है, बट पोर्टल पे मैंने उसका ITC नहीं लिया। और दूसरा केस भी ऐसा होता है कि जब मेरे किसी सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं करी और मैं बड़ी मतलब कंजर्व नेचर की हूँ, तो मैंने बोला जब तक 2BB नहीं दिखता ना आपको नहीं लेना क्लेम। तो उससे क्या होगा, बुक्स में तो एंट्री हो रही है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड GST रिकन्सिलेशन एंड GSTR 9, दीज 3 आर डिफरेंट थिंग। 9 इज ओनली अ डिस्क्लोजर। कोई कई बार ना बड़ी फनी कई चीजें बोलते हैं 9 में ITC ले लें, अरे ITC आता कैसे है, 3B से तो आता है, 9 से कैसे ITC ले सकते हो आप। 9 इज सिंपली अ डिस्क्लोजर स्टेटमेंट। 9 में कभी कोई इनपुट लिया नहीं जा सकता, कभी कोई आउटपुट, जो भी होता है वो हम सिर्फ शो करते हैं और DRC के साथ उसको पे कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज 35, क्लोज 35। अब देखो हम सारे जाने क्वांटिटेटिव डिटेल, स्टॉक रजिस्टर सबके कहते हैं, और जो GST के अंदर 35 सेक्शन के अंदर भी लिखा हुआ है क्या, अब यहाँ से भी आपको याद रह जाएगा 35 डिटेल्स का होता है और 35 सेक्शन GST में है रिकॉर्ड्स का। उसमें ये होता है कि आपको अपनी इन आउट का पूरी डिटेल बनानी है, तो मेरी वो आउट यहाँ वाली आउट मैच करती हो। अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ऐसे बोलें कोई बात नहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर तब ऐसा ना लगे हो नहीं ये ना उसके हाथ में लग जाए फंस जाएंगे। देखो 2 सिनेरियो हो सकते हैं, एक हमें स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम कहेंगे हम इसको चैलेंज करते हैं, मेरे पास तो एविडेंस है, एक है अब इसको छुपा, ये हाथ में आई तो हम जाएंगे। तो ये सिनेरियो नहीं होना, रीजन बीइंग that is a document which DGGI they ever used. Audit report, when I am talking about the data analyst ना, तो अभी वो चीज़ें नहीं जानी कि GSTR 1, 3B, 9 इन सबको देख के वो आपको नोटिस निकाल रहे हैं। प्लीज नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड ड्रास्टिकली। We are very happy AI come into the picture. If we are using AI, even we are having ample, whatsoever you can say, the funds, we are having less to invest in the AI. But the government is deficient of funds. तो सबसे पहले AI कौन यूज़ करेंगे, ये करेंगे ना। जितना टाइम हमें लगेगा ना ई-वे का, और इसको हम बोलेंगे है इतने ई-वे हैं, इतने चेक कर रहे हैं, इतनी देर में उन्होंने नोटिस निकाल के जस्ट अ क्लिक ऑन देयर स्क्रीन, नोटिस गॉन टू ऑल। लास्ट टाइम तो आए थे इतने के फनी आए थे, मेरे को आया हुआ था आपने ITC लिया ई-वे कोई नहीं बना, फिर मैंने हंस के रिप्लाई की, मैं कहा सर देख लो सर्विस का कोड है, सर्विस के कब से ई-वे शुरू हो गया। मैं कहा सर कभी कभी ऐसे भी क्लिक नहीं कर देते, तो दे साइड की पीछे से आ रहे थे बन के, ठीक है ना। तो इवन कंप्यूटर जब ये चीज़ें होंगी, इफ़ यू आर हैविंग अ नॉलेज ऑफ इट और यू स्ट्रेट अवे सेड ऑल दीज थिंग ना, जैसे कॉल आए तो हमें तो क्लाइंट का पता भी होता है क्या है कैसे नहीं है, तो फिर वो इमीडिएटली ड्रॉप करते हैं या तो नोटिस नहीं देते। अगर गलती से निकल गया था तो फिर मैं बोल देती, मैं कहा सर ऐसा लिख दूँ, नहीं नहीं मैम वो ड्रॉप कर देता हूँ, 1 नहीं आया, अभी ये नहीं किया, वो 1 नहीं किया, लास्ट टाइम ऐसे हुआ मैम वो नहीं आएगा, टेंशन मत लो। तो अब हमको टेंशन देनी है, लेनी नहीं है, और क्लाइंट को ज़रूर देनी है। दिस इज़ द राइट टाइम, टैक्स ऑडिट के टाइम उसको बुलाओ, उसको दिखाओ ये चीज़ देख। हाँ मैंने हर एक को भेजा, सारे ऊपर से हमें भेज रहे हैं मैडम अभी वॉलंटरी है। मैं कहा अभी है सर, 4 महीने बाद मेरे को मत कहना जब ये मैंडेटरी हो गया, क्योंकि जब हम कुछ भेजते हैं ना, आजकल वो AI ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट भी साथ में भेज देते हैं। मैंने भेजा ई-वे क्लोजर आ गया, साथ में आ गया मैडम वॉलंटरी है। अरे हाउ स्मार्ट दे आर। तो फिर मुझे बताना पड़ा कि सर आफ्टर 4 मंथ आर यू गोइंग टू मेक दैट सिस्टम रोबस्ट इन योर इंडस्ट्री इफ इट बिकम इमीडिएटली द मैंडेटरी वन। अब कोई भी चीज़ आप देखो, ई-इनवॉइसिंग जब आई थी क्या हुआ था, पहले यही आई थी ना बना लो, फिर तब क्या शुरू हुआ था 100 CR, तुम बोलो बहुत बड़ों के लिए 5 करोड़ कुछ रह ही नहीं गया।
और ये है इन्होंने हर एक पे ही कर देनी है, जो मतलब सिचुएशन लग रही है ना, अब B2B बिल बनाना तो ई इनवॉइस के थ्रू ही होगा. इट मीन्स दे आर नॉट गिविंग अस अ टाइम, बिकॉज प्लानिंग को टाइम होता था तो इतने हम दिमाग के हैं, प्लान कर लेते थे, अब प्लान ही नहीं कर सकते. जब से 2B आ गई आप क्या कर लोगे किसी का, सेल फ्रीज, परचेज फ्रीज, क्या बुक्स में करोगे, मतलब कितनी का क्रंच रह गया हमारे पास करने का. और उन सबको भी पता है, हम सबको भी पता है कि अनरजिस्टर्ड से बाइंग हम कैसे डालते हैं, क्योंकि अभी इसका कोई कॉलम नहीं है जिसकी स्टॉक की वेरिएशन है कुछ है, हाँ अनरजिस्टर्ड से परचेज डालो कितने क्रेडिटर खड़े हैं. तो देयर आर सम फंडामेंटल थिंग्स जो इतनी के फंडामेंटल हो जाती हैं, उनको भी पता चल जाती है ये फंडामेंटल है. नाउ दे आर लुकिंग इनटू दैट पार्ट. क्रेडिटर्स मंगाने, कौन से रजिस्टर्ड हैं, कौन से. क्लोज 44 इज नथिंग, इट इज जस्ट द एनालिसिस कि कितना आपने रजिस्टर्ड के साथ डीलिंग की थी और कितनी आपने अनरजिस्टर्ड के साथ डीलिंग की थी. दिस इज द मेजर वन जो क्लोज 44 है. एंड इट इज वेरी इजी टू से कि इट इज अबाउट कितनी रजिस्टर्ड के साथ की थी, कितनी अनरजिस्टर्ड के साथ की थी. नाउ सी ए एग्जांपल, वी ऑल डू द बैंक ऑडिट्स. कैसे होता है, हम फ्लाइट की टिकट कराते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचते हैं, समटाइम वो टेक टैक्सी, समटाइम वो टेक उबर, ओला, वो भी कर लेते हैं बीच में. फिर ऑन द वे कोई रजिस्टर्ड से होता है तब खाना खा लेते हैं, कोई अनरजिस्टर्ड भी होता है वहाँ से भी खाना खा लेते हैं. ठीक है. अब जब आप सबको इनका इनवॉइस बनाना होता है, हमारा केस तो डिफरेंट होता है, हम कहते हैं क्या करो जी GST लगा दो. बट कैन यू बाइफरकेट फॉर ऑल दीज ट्रांजेक्शन, विच ट्रांजेक्शन बिलोंग टू द रजिस्टर्ड वन, विच ट्रांजेक्शन बिलोंग टू द अनरजिस्टर्ड वन, विच बिलोंग टू द एग्जम्प्टेड वन. यही है ना क्लॉज 44, बाइफरकेशन. सो you practically you can't do it unless and until there is a robust system they have placed in the industry. Otherwise you don't get attested, audited. Give a disclosure, only give the authentic data, otherwise disclosure one. These are the major one things. अब जो ये 11 क्लोजेस थे ना, अब देखो जो क्लोज 4 था ना, इससे क्या मैं प्रूव कर देती हूँ, यस आई एग्जिस्ट. तो ये मेरे लिए था आइडेंटिटी प्रूफ. जैसे ही मैंने GST नंबर 4 डाले, जब ऑडिट हो रहा था, एक ब्रांच का ऑडिट हो रहा था, अब वो कहते हैं कि दूसरे का, मैं कहा ऑलरेडी हमने मेंशन किया तो हुआ है. जब एक का ऑडिट हो रहा था वो कहते हैं कि आपकी बैलेंस शीट जो समटाइम वी व्हाट वी डू, वी प्रोवाइड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड नोट द ट्रायल ऑफ ऑल. अदरवाइज इसकी रिकन्सिलेशन जब 9(9)C करते हो, 9C में साथ में ही अटैच कर दिया करो. ट्रेडिंग अकाउंट हमेशा अगर आपके 5 GS10 है, टोटल बैलेंस शीट जो लगाई है ना, उसके साथ एक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट जस्ट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट. दे आर नॉट बोदर अबाउट योर P&L, बट येस दे आर टूवर्ड योर आउटवर्ड सप्लाईज. तो वो लगा देनी ज़रूरी है. क्लॉज 10 से मुझे पता चलता है कि ये बिजनेस कौन सा कर रहे हैं, उसका प्रूफ है. क्लॉज नंबर 18, ये मेरे कैपिटल गुड्स ही थे. ये कहाँ से पता चला, मैं जस्ट टेक इट आउट सर, मैंने इसे कैपिटलाइज किया हुआ है. समटाइम दे नेवर एग्री टू इट, तो दैट इज अ प्रूफ. देन क्लोज 27, मैंने ITC कितना लिया, दैट इज कवर. सो दीज एवरी क्लोजेस दे गिव अस अ क्लू कि कितना क्या चीज़ है. और 44 में जैसे मैंने आपको बताया था, दैट इज अ सप्लायर प्रोफाइल, कि आप कितने रजिस्टर्ड बंदों से डीलिंग कर रहे हो और कितने. बेसिकली तो वो यही है ना, अगर आप मेजरली देखो. और समटाइम वी सेड कि जब लॉ पढ़ना है ना, तो वर्ड टू वर्ड पढ़ना. इसमें मेरे पास डिटेल्ड है, 2 घंटे का सेशन होता है सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिलेशन टू. वहाँ पे पढ़ के देखना, एंटिटीज एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर द एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू एंटिटी. ठीक है. अब ये इन रिस्पेक्ट ऑफ और रिलेशन क्यों किया, वर्ड में चेंज क्यों की. एक तरफ से मैं कह रही हूँ पुट स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, और सेकेंडली मैं क्या कह रही हूँ, जहाँ टोटल पेमेंट लिखा ना, पेमेंट को पेमेंट मत समझो. वहाँ पे पेमेंट का मतलब कुछ पेमेंट से लेना नहीं है. उसमें आपने इनकर्ड, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, इनकर्ड का मतलब होता है इट हार्डली मैटर यू हैव पेड इट और नॉट, दैट इज यू हैव क्रिएटेड द लायबिलिटी. दैट्स वाई वी सेड टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू और कैपिटल और सीरियल नंबर डालने का लॉजिक ही यही है. अब सारे जाने क्या करते हैं, कंसोलिडेटेड डाल देते हैं. सर जितना आप हेडवाइज डालोगे उतनी मैचिंग होएगी, उतना आपके लिए ईज होगा.
अब ये ऑब्वियसली ये हमारा प्ले गेम है, ट्विस्ट है, हमें पता है किसका डाटा कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली इसका एडवाइस देना है कि इसका टोटल देना है. वी ऑल नो अबाउट आर बेटर अबाउट आर क्लाइंट्स. सो सर आई थिंक आई हैव टू क्लोज. So, having 80 slides, only 4 done, no issues. I think the major thing I have covered these 11 clauses of tax audit report. You get the idea. You also get the clue कि ये चीज़ों पे majorly कोई गलती ना हो. Because that will overlooked as a क्या लगेगा किसी को ये देख के कि पर्सन को, आपको ऑडिटर को इतना ही नहीं पता इसकी ब्रांचेस कितनी है, ऑडिटर को यही नहीं पता उसने काम क्या किया और वो कह रहा मैंने ऑडिट कर दिया. तो हमारे कभी डीसी पे ये चीज़ ना आए कि दैट इज़ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस. सो थैंक यू ऑल फॉर पेशेंस लिसनिंग. रियली जितनी देर तक आप सुबह से बैठे हो, सल्यूट. एंड होपफुली नंबर सर से लेके अगर इन केस कोई डाउट होगा तो एनी टाइम. यस बिल्कुल होएगी सर. इसमें मैंने अटैचमेंट करके भी देनी है, मैं वो भी कर दूंगी. ठीक है, और भेज दूंगी मैं. थैंक यू. Thank you very much, ma'am, for this absolutely knowledgeable session. The last session, but still we have the good number of members present there. It is the presence of members that this session made very successful. Once again, thank you to the team WRC and the study circle. I request everyone, I request Mansi ma'am to please give well-deserved vote of thanks to all the members. Then we will leave. Yeah. So I have the pleasant task of giving the vote of thanks today. As we come to the close of this enriching masterclass on GST, I take this opportunity on behalf of WIRC, our office bearers, and our Borivali CP Study Circle to express our sincere gratitude to our esteemed speakers for throughout the session during the day, and especially to Sonia ma'am for giving us such an insightful, detailed analysis on how we have to look into the income tax audits with respect to GST. When we were only thinking about 1 or 2 clauses that we were supposed to take care. And she showed us a list of 11 clauses. So it was really insightful, ma'am. And finally, thank you all the participants, thanking all the participants for being present and participating till the end of this whole day. Thank you, everyone.